Alright, we have arrived at the Khadda in phase 8 and what are we going to discuss today? We're here and Farhan Chawla has bought us Red Bull, so Red Bull, Lays chips. Except कि मैं वो जो event में गया था उधर Telenor के वहाँ Red Bull girls थी. अच्छा. girls. Red Bull की गाड़ी भी होगी. बड़ा set था break dancing miss किया. Aja, this is welcome to Laid Back Show episode number 16, and we are in phase 8 and we are just thought a change of venue should be interesting. We are going to limit ourselves to 10 minutes. Inshallah. And let's start off. The first topic that we're going to talk about is Afia. Yeah, very sad case. She's been sentenced for 35 years. Mind you, she's not been sentenced. May 8 को इसकी judgment आ रही है well, for attempted murder. But the problem the is jury has read out the verdict at least in this venue. They have, and they are going to appeal in the Supreme Court. And the problem Court. is, she was only charged being in August 2008 attempting to murder an FBI agent. उससे पहले जो 5 साल था उसके कोई कहानी कोई. अच्छा मुझे बताओ ये जो इन्होंने पूरा ड्रामा किया था कि खालिस्तान से ये मिली और ये हुआ वो हुआ फिर ये तो बात की कहानी है ना कि उन्होंने अटैक किया. वो तो किसी ने बात ही नहीं की जो इतना हंगामा मचा था कि she was labeled Al-Qaeda woman and she was captured because Al-Qaeda तो उसका Al-Qaeda के साथ जो लिंक था वो क्यों नहीं चार्ज हुआ? Why that's the issue. कोई टेररिज्म का चार्ज नहीं हुआ. Nothing except the fact कि आप सड़क पे चलते हुए किसी को मारने की कोशिश करें या FBI मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है ना. एविडेंस नहीं है. So that means जो 3-5 साल जो गायब रही where she was sold off to the American forces or whatever or kidnapped from Karachi in March 2003. She was definitely kidnapped. Well, that's what some people argue and taken away against her will. I had a different opinion. I have an opinion कि भाई जो judgment हुई है, you have to accept the court judgment. Yeah. And then challenge in the appeals. People were मैं अपने blog पे लिख चुका था and people were actually debating with me कि भाई ये how could you accept the court decision? और फरहान तुम्हारा क्या opinion है? यार मैं इसको तो follow नहीं कर रहा लेकिन what I've seen is कि जो है उसका पूरा और एक तो उसके बच्चे हैं. एक बेटा तो उसका यहाँ पर है. एक जो गुम है उसकी बेटी वो किधर है? नहीं वो है. What actually happened was the sister had kids. And the elder kid was found with her in Afghanistan, but he was sent back. But कुछ ऐसे ही खामोश. Every statement they used to make, they used to keep quiet. जब press पूछती थी बच्चा कहाँ है, बच्ची कहाँ है, they would not respond. And we ultimately found out, and the बच्चे निकल आए. तो बच्चे are okay. But the thing is, you have to accept that decision उसने attack किया है ना. किया है. I mean, but the problem is जो gun के अंदर लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी female इतने बड़े marine को कैसे attack कर सकती है? The thing that was presented in court, the gun did not have the fingerprints of Afia on that gun, M6. So basically evidence किस चीज पे based? That's but the jury has decided. I mean that's what I'm saying. We have to draw the line. The jury has decided on what? On the soldier statement? एक हमर ही रह गया. क्या बात है. White रंग की हमर हमें नजर आई है यहाँ पे. मेरी लाल टपक जाती है ऐसी चीजों को देखकर. We can look at these things. Look but don't touch. बेगम साहब वाली पॉलिसी. मेरे घर के वैसे ऑफिस से रोज से गुजरती है. ड्राइवर चला रहा हूँ. सेठ साहब को पता नहीं शौक क्या हमारा कि जब ड्राइवर चलाते हैं हमें. वही है. अच्छा तो मुझे ये बात बताओ कि अब ये जब हो गया तो now they're going to appeal for it in the Supreme Court. The judgment is going to be passed on the 8th of March. Once the judgment is passed, then they can appeal onwards because ये district court का decision है. They can go to the New York High Court and the Supreme Court onwards. But appeal होगा. But mind you जो सारा bias आया मुझे जो लोग court के अंदर मौजूद थे, people who were reporting from there, Pakistani journalists were not allowed in the courts. And American journalists that were there were reporting. They said that every time the prosecution used to say कि भाई, the defense used to say कि भाई, why not bring the Al-Qaeda linkage, the judge used to throw that away. So एक बड़ा strong bias था. The judge was given a strong agenda, and that's what I feel. The debate is there, but I think judiciary system को you have to somehow accept the decision and then appeal onwards. That's my position. I think you have to move in the process that is based in over there. मगर मुझे एक सवाल तुम लोगों से करना है. मुझे एक बात बताओ कि do you feel that if a woman, say any woman, not just Afia, is contributing towards Al-Qaeda and against the national interest of this country or the war on terror, do you think she should be picked up like this? No. Why not? I give an example. Abhi just recent, a month back, 3 Americans were picked up in a conspiring. Rahman Malik is on record to have said कि reporter ने पूछा they should be tried here. He said why should they be tried here? वो अपने court में आकर वहाँ करें. So hypocrisy is that way.
अब देखिए गोरी ना, चमड़ी यहाँ ट्राई नहीं होगी, वहाँ ट्राई होगी, मगर ब्राउन चमड़ी भी वहाँ ट्राई अब होगी, देखिए यहाँ ना, नहीं ट्राई कोई होगी। खातून आपसे बात करती है और एक मकरानी से बात करती है, तो उसमें फर्क तो है ना यार, आपको पता तो है गोरी चमड़ी के एडवांटेज। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कोई नेशनल अगर इंटरेस्ट यहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया तो यहाँ पे होगा। There's a law. अगर मैं कल यूएस में किसी को मारता हूँ तो मुझे वहाँ पे बिठाएंगे, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। वहाँ तो पहले आप खाल उड़ाड़ेंगे तुम्हारी, तो यू गाइस पहले तुम्हारी कफन भेजें। So you guys are okay with the trial, but not with the extradition. basically. My position was always the fact that I'm not taking sides if she was involved with terrorism or not. I'm मगर just जिस चीज open- के लिए उसको उठाया उस पर तो ट्राई नहीं किया। If she was picked up in Pakistan, she should have been taken to jail here. She should have been tried in the courts here. If the international courts had permitted, then you could take her onwards to an extent कि आप इसे extradite करते हैं, if the international terrorism courts would have been permitted. But that was after a trial process. Or maybe that could have been processed through Interpol. After the trial, the problem was on the 30th of March. 2003. She was picked up here. Move on. Okay, right now we are LBS 16. Me, Awab Alvi and Farhan Chawla are headed to phase 8 to do some balatkar. थोड़े से हम बलात्कार करेंगे। फरहान साहब आप हमें बताएंगे ये क्या कंप्यूटर क्या चीज है? व्हाट इज दिस? छोटा सा कंप्यूटर बना है, इससे बेसिकली अ स्क्रीन कनेक्टेड विद अ मोबाइल फोन। हाँ, और इसका ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल फोन में जीपीएस भी है, इसके अलावा एसएमएस और इंटरनेट। It is technically a VGA display. इट्स टेक्निकली वीडियो डिस्प्ले, दैट्स इट। लेकिन जो कुछ सेलफोन की कैपेबिलिटीज हैं सब इसके ऊपर बड़ी स्क्रीन पे आ रही हैं। तो हाउ इज इट कनेक्टेड बाय द वे? इट्स कनेक्टेड बाय द रेगुलर आरसीए केबल्स जो कि मोबाइल फोन के साथ मुझे मिली हुई है, उसे मैंने कनेक्ट करा इसके साथ, इसका टीवी आउटपुट पे, एंड द होल थिंग इज डिस्प्लेइंग ऑन द पावर्स की सारी गाड़ी की। So basically the processing is being done by your cell phone and that's just the display. That's just a display. And this is telling us what? This is a map showing us right now where it's we are showing going. GPS maps of Karachi हाँ। and all the way down to DHA Golf Club. ये पूरा बोलता रहेगा आपने turn right करना है, turn left करना है, it will take you there. 5.5 kilometers. Nice voice, Awab. What do you think? अब आपको GPS नहीं करते I think your lonely days of off-roading are over now. As long as you have ये this नहीं, voice. आपके लिए मैं तुम्हारे लिए लाया था ये, because last time you said कि यार मैं जाता हूँ 3 दिन जंगल में जा रहा हूँ, there is no technology, nothing, सबसे दूर जा रहा हूँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाह। इसमें that means you could type. You can type. You can type क्योंकि मोबाइल से कनेक्टेड है. Yeah. इसका ब्लूटूथ कीबोर्ड मैं लेकर आता तो मैं हाथ के दिए पूरा You सेल फोन चल रहा है इस you पे। can watch stuff on this also then. Yeah, you can even watch a movie on it if you have. Oh, You can run maps, you possibilities. can go to the internet. सारे काम इस पे हो सकते हैं। Okay, now we are going to cut off and नहीं, इसमें come एक- back when we are coming to the One khadda more or thing. what? This is connected to lighter outputs of the car. Yeah, this is Awab's car, by DC the way. output. Yeah. और उस पे ये कनेक्ट करके that's how it's getting power supply. P suction types लगे हैं बस. Other than that, it's just a VG output going to the. और FM आउटपुट से हम गाड़ी के स्पीकर्स यूज कर रहे हैं। Very cool stuff. Checking out and coming back in as soon as you get to face it. Okay, coming back. Chips बहुत अच्छे हैं यार. Sorry, I'm a bit of a petu guys. यार ये शाहिद आफरीनी जो सेब भूख लगी हुई थी मैदान में अचानक से वो जो भाव है पाकिस्तानी कुत्ते की तरह काटते हैं. do you think he innocently did that? पागल हो गए यार. He यार, himself claims. भूख लग रही है. जब उसने हरकत की है तो कमेंटेटर भी इतना घबरा गए कि कमेंटेटर भी उसको डिफेंड करने लगे कि यार हो सकता है कोई बॉल पे थ्रेड लूज हो गई हो जो वो काट रहा हो. He should have taken it to the umpire to get it snipped off. बट जब लेटर उसका क्लोजअप आया तो देखा गया कि he was actually biting, gouging the ball to induce swing. मैं बेचारा he was so desperate to win a match for Pakistan. तो यार बात यही थी कि वो एक मैच में कैप्टन बने थे आई गेस. उन्होंने सोचा कि भाई सारे बाकी तो हार गए तो ये किसी ना किसी तरह इन्होंने पहले भी ऐसी एक हरकत की थी फैसलाबाद में जब इन्होंने पिच पे डांस किया था. उल्टा पिच को खराब करने की कोशिश की थी इन्होंने. On the danger spot. Spun around with श्रीलंका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ? श्रीलंका के साथ. श्रीलंका के खिलाफ. जो वक्तन फवक्तन इस किस्म की हरकतें करते हैं जी that's the problem. You didn't hold him accountable then. उस पे भी उसको 2 मैच का बैन मिला था. उसने कहा ऐसी की तैसी I could pull off only 2 match बैन. या कितने $4,000 के नुकसान होगा उसके मैच फीस का है ना. That's it. मेरे ख्याल से तो उसको बैन कर देना चाहिए. क्या ख्याल है तुम्हारा? है कि इंक्लूडिंग मोहम्मद आसिफ यार. हाँ. ये दुबई जो गया था करप्शन वहाँ उसको बचा के 17 दिन जेल में रखा उसको वहाँ से भी निकालो. यार सोचो बच्चे खेल कर आए हैं इस बार। हाँ यार under 19 खेल कर आया है, फाइनल तक पहुंचा, फाइनल देखिए हारा लेकिन फाइनल तक पहुंच के खेल कर आया। बच्चों को भी एक गलत लीडर्स की इंप्रेशन मिल रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद
ये 2 साल सबसे बड़ा मसला है कि इनमें चलो अगर कोई न्यू भी हरकत करता है ना, अगर वो मोहम्मद आमिर नया बॉलर है वही हरकत करता है तो मैं उसको बोलता यार ये बेवकूफ़ है, अभी गांव से आया है, इसको पता है। एक आदमी जो 300 मैच खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसने ऐसी हरकत करने का सोचा कैसे यार? पता है पाकिस्तानियों के हाथों पर कैमरा फोकस रहता है, there are thousands of cameras around you, not just the on field जो ऑफिशियल कैमरा है, लोगों के कैमरे होते हैं। एवरी मैच हैज 22 कैमरास। ऐसे कितने कैमरे होते हैं क्राउड में जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो? इनफैक्ट वो तो दूर से फोकस भी कर रहे हैं। एंड दे आर एक्चुअली, पाकिस्तानी जब बॉल करने आता है उसके हाथ को जेब पर नजर कहीं कहीं इधर उधर जाती है तो नजर रखते हैं, बिकॉज दे डाउट एंड वी आर रेप्यूटेबल फॉर दैट आल्सो कि हम जो, मगर अबे उन्होंने स्टेटमेंट किया कि सब करते हैं जनाब। हाँ सब करते हैं। एंड उसी मैच में एक बात है, इट डज गो ऑन, वो इट डज गो ऑन, बट व्हाट जो पकड़ेंगे हमारी पकड़ेंगे। आई मीन वही बात है, जब पकड़े जाओ तो फिर एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। 6 महीने पहले का, आपका 6 महीने थोड़ा टाइम हो गया, गिलक्रिस्ट जब विकेट कीपर था ऑस्ट्रेलिया का, एक मैच में इंडिया के साथ उसको थ्रो आई बाउंड्री से, एंड एज सून एज ही कॉट इट ही रब्ड इट ऑन द ग्राउंड। वो जो बिल्कुल विकेट के पीछे का रफ पैच होता है उधर उसने जोर से रब किया बॉल को डैमेज करने के लिए। इट वाज कॉट ऑन कैमरा बट ही वाज नेवर कॉल्ड ऑन। नाउ दिस बायस जस्ट एग्जिस्ट इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड एज वेल। आई गिव अनदर एग्जांपल। अभी आज जब उसी मैच में खालिद कौन है जिसको हाँ खालिद साहब जो ओपनर है स्पेक्टेटर ने आकर टैकल किया, बट द स्पेक्टेटर इज बीइंग चार्ज्ड। व्हाट द फक यार, स्पेक्टेटर बाहर में जाए, ऑस्ट्रेलियन टीम होती, द मोमेंट ये बाहर भाग चुके थे हंगामा मचा होता, आईसीसी रो रही होती बैठी, पीसीबी रो रही होती, दे वुड हैव वॉकड आउट फॉर श्योर। व्हाई आर वी सो स्टूपिड कि हम वो मुस्कुराते खड़े हुए, ठीक हो गया, आई एम ओके, नो चार्ज, उल्लू के पट्टे। एंड द पॉन्टिंग सेड दैट इफ दिस हैड हैपेंड ऑन माय टीम आई वुड हैव वॉकड आउट दैट। बात ये है कि मीडिया साहब गोरी चमड़ी इतना मुस्कुरा के खड़े हो गए, उसके 10 बॉलों के बाद उन्होंने बाइट गॉजिंग की ऐसी तैसी, और वो हमारी जो बजी है वो बाइट गॉजिंग उससे पहले हुई थी, गॉजिंग उससे पहले हुई थी, गॉजिंग उससे पहले हुई थी। क्राउड बू कर रहा था, उसके उसमें तहश में आके एक बंदा आ गया फील्ड पे। बट बात ये है कि यू आर राइट, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। अब मसला है हमारे बंदे मीडिया savvy नहीं है, पॉलिटिकली savvy नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू सीज द मोमेंट लाइक दैट एंड यू नो टर्न इट अराउंड फॉर देयर बेनिफिट। इंतजाम ने किया था ओवल में, he walked out on principle, the nation stuck by it, the nation was rallying behind, doesn't matter what happens, है ना, चाहे वो जिस गलत किया गलत सही किया, the nation was behind it। वाला तो बहुत बुरा था, बहुत बुरा। they should have definitely walked out। principle stand होता, you could imagine the entire nation of Pakistan nation or the entire, but इसका एक split side भी है। अब वो आप ये ऑस्ट्रेलियन के सामने को बोलोगे कभी तो the Australians gonna turn around and tell you that we saw your guy bite a ball and we didn't walk off। we to talk about अभी कल परसों जो बॉम्ब फटा, two simultaneously two bomb blasts separated by about 2 hours, very well planned। मैंने ये देखा कि भाई very well monitored as well। पहला फटा पे जहाँ पेशेंट को लिया गया, दूसरा वहाँ उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी प्रॉब्ली। वो बहुत बुरा हुआ जो हॉस्पिटल में पड़ा ना उन्होंने, actually it was so much planned कि वो जो मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल does not seem to be like a suicide bomb at all। नहीं देख वो साबित हो गया, they both remote control devices। और वो जो थर्ड वाली पकड़ी गई है तो कुत्ते साहब तो उसके बराबर से ही निकल गए सूंघते हुए, सूंघा ही नहीं उसको। कितने लाख का कुत्ता जो रोज आपकी गाड़ी सूंघता है। वही तो नहीं वो सीसीपीओ वसीम साहब कह रहे थे कि ये जो कुत्ता होता है K9 यूनिट, एक तो इसकी फैसिलिटीज होती हैं प्रॉपर, इसको एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उसकी सेंस को एनहांस किया जाए, और दूसरा इसकी जो एबिलिटी होती है वो 2 घंटे की होती है, ठीक है। हम पूरा दिन इनको रगड़ते रहते हैं, पूरा दिन सुंगाते रहते हैं, वो बच्चा मतलब बेचारा चर्च सुनता है बेटर है मुझे और सुंगा यार। I was laughing about it. It was such a tragic incident. We're not laughing on the incident. People, for God's sakes, don't think that. It was a very tragic incident for the city. What was the death toll? Yeah, I think about 35. Officially 35, but I think we all saw on the screens before the second incident के I think there were 200-300 people there. 50 देखो आप एग्जांपल ले लो, 50 लोग इंजर हुए थे, 20 लोग मरे थे, तो 70 लोग हो गए। 70 लोगों की फैमिलियाँ कितनी हैं? अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो 150। तो I mean it's just unimaginable। और ये जो शियास के साथ हो रहा है यहाँ पे, it's just the problem is if these things cannot be controlled, there's no use of having this biggest right. That's what we try to say. I mean, what's the use of having mourning to see it? Understand, you're condemning the incident, but are you solving the problem? You're not. I don't think so. I think इसका कोई फायदा नहीं। 3 दिन का इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। इस ट्रक का फायदा क्या होगा? फायदा कुछ। What's the फायदा? आप ये बोल सकते जैसे या शट डाउन करें, हम छांटी लेते हैं पूरे कराची की, है ना, इस तरह की शट डाउन करो ठीक है, हाँ दैट्स व्हाट वी क्लींस इट आउट।
कुछ नहीं है, सब घर बैठे हुए हैं, मुझे इकोनॉमिक लॉस। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम ये क्यों नहीं करते कि एक दिन हम एक्स्ट्रा खुला रखेंगे और जितना भी इनकम होगा हम सब जो है Donate ये जो फैमिलीज जिनके लोग बस। मरे हैं उनको डोनेट। लोगों ने एतराज़ तो किया था, आईटीपी वाला टैक्स लगाया था उन्होंने गवर्नमेंट ने, ये और जबरदस्ती का टैक्स। जबरदस्त ये यही बात, जबरदस्ती का that's टैक्स था। I think that's If that unfair। money is going to the people, फिर बात समझ में आती है, you know पैसा कहाँ जा रहा है। वो अभी यहाँ से घूमता हुआ नजर आएगा आपको अपना पैसा। ये मर गई थी वो अभी। अभी गुजरेगा यहाँ से ना, हरी नंबर प्लेट वाला पैसा आपको घूम रहा होगा। बट यू नो द थिंग इज के आई मीन जो भी है बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है और शोक के तो हम सब एग्री करते हैं, बट स्ट्राइक का कोई एडवांटेज है संडे का तो कोई। But there are reports, I mean, जो रहमान मलिक and these guys say कि 10 बॉम्बर्स कराची में एंटर हुए, जैसे लाहौर में एंटर हुए 10 गिनती के आए थे, है ना, 2 तो फट गए, 8 बाकी हैं। रहमान मलिक तो वो जो क्या कहते हैं जो आप अगला गाना लगाने वाले हो ना अपनी गाड़ी में सीडी पे उसका भी पहले से पता है। मतलब ये इससे ज़्यादा फजूल बात मुझे लगती नहीं है कि आपको ये पता हो कि कितने बॉम्बर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कब से सब पूरी कहानी पता मगर है। आप उनको पकड़ नहीं सकते। आई गेस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चलते वक्त मिलती होगी। टिकट काट रहे थे, जब ट्रेन के डब्बे पे सवार हुए, बैठे 10 थे, निकले 2। तो यार, जो भी हो रहा है ना इस मुल्क में इट्स अनफॉरगिवेबल। इट्स जो हो रहा है लोगों के साथ इट्स जस्ट यार। We're going to wrap up this short show this time. We want to make sure that we limit ourselves very much. It's wrapping up. We will have Farhan's technology show in a separate segment. And signing off from Laid Back Show from Phase 8 in Defence, Karachi. See you next time. And try these chips. They're damn good. ये हलाल वाले Halal. Junaid Jamshed certified. All right. See you guys. Have a good weekend.